Hello dear student, today we'll start the numerical. We solve numericals for exercise. Okay, so here we are going to solve value based numericals. So this all numericals are very important. So here 7.2 number, in an HCl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Okay, that means here the distance is given. Okay, so here you have given r, that is the distance between these two molecules, 1.27 angstrom, right? Find the approximate location of the center of mass of the molecule, given that the chlorine atom is about 35.5 times as massive as the hydrogen atom and nearly mass of an atom concentrated in its nucleus. That is, suppose हम mass of hydrogen consider कर रहे हैं हम, so what is the mass of chlorine? You can say 35.5 m. What is the mass of chlorine? 35.5 m, right friends? सो अब यहाँ पर किस तरह से है, सो HCl मॉलिक्यूल जो है वो HNCl से बना हुआ है. ओके, सो हियर वी हैव HCl मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, राइट? सो हियर वी कंसिडर कि ये है हाइड्रोजन एंड ये है क्लोरीन, राइट? तो हम रेफरेंस लेते हैं हाइड्रोजन का, राइट? तो यहाँ पर एक हमने ड्रॉ कर ली ये लाइन, राइट? और ये रहा आपकी वाई एक्सिस. Okay, see, it is hydrogen and it is chlorine, right? अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, यू कैन से इट इज़ r, राइट? और ये है आपका रेफरेंस, हाइड्रोजन रहेगा आपका रेफरेंस पॉइंट, राइट? So here our system consists of two particles, that is the hydrogen and chlorine. Okay, that means here system consists of two molecules. Therefore, according to definition of center of mass, what you can say, HCm, that is equal to m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2, right? so यहाँ पर m1 is equal to है m, m2 is equal to है 35.5, x1 that is the position of hydrogen, वो हमारा reference point है, so that is 0, and x2 that is the position of chlorine, that is what, r. okay, तो substitute करें सब चीज़ यहाँ पर. so m1, what is your x1 that is the 0 plus m2, what is the m2, 35.5 m, and what is the x2, so x2 is equal to r upon m1 plus m2, what is the m1, that is the m plus 35.5 m. okay, so here you can say that HCm, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 0, 35.5 इंटू m, 35.5 into m
into R. What is the R? 1.27 angstrom. What is the R? 1.27. Your answer will be in angstrom upon m1 plus m2. m1 is a m plus 35.5 m, that is m into 35.5 into 1.27 upon m plus 35.5 m, that is a 36.5 m. So these two get cancelled. So xcm, that is equal to 1.24 angstrom. What is the position of center of mass? You can say 1.24 angstrom, right? Next sum, second one. Show that the area of triangle contained between the vectors A and vector B is 1/2 of the magnitude of A cross B. Okay friend, so just focus here. Here we consider this 3 point, right? You can say A, B, C, right? अब कंसिडर करेंगे हम लाइन. ओके, यू कैन से OA, दैट इज अ वेक्टर A. ये रहा आपका वेक्टर A, ये रहा आपका वेक्टर B. ओके, और AB से ये होगा पूरा आपका ट्राइंगल, राइट? सो दैट मीन्स हियर you can say OA, that is a vector A, and OB, that is equal to vector B, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, you can say it is a theta, right? अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे B से, राइट? B से हमने एक लाइन यहाँ पर खींच ली, राइट? So here we can say it is a right angle, perpendicular. It intersect at a point N. Okay. Then now here we can say sin theta, right? So from figure you can say sin theta. What is the sin theta? Sin theta is equal to Bn upon OB. Okay, that is what you can say Bn upon OB. What is the OB? That is equal to B. Therefore Bn, that is equal to B sin theta. You can say equation number 1. Bn is equal to B sin theta, right? चलो फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड करना है वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? दैट इज नाउ A क्रॉस B, A क्रॉस B, that is equal to AB sin theta. Okay, what is A? A is OA. A is equal to क्या रहेगा? So you can say OA is equal to magnitude of A, like this, and B sin theta, that is equal to Bn. What is the B sin theta? So you can say it is a Bn, right? So here we multiply and divided by 2, that is 2 OA into Bn upon 2. Okay, that is equal to 2 इंटू ये हो गया आपका हाफ OA इंटू BN. ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर हम कहेंगे पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए. ओके, सो हियर व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? that is equal to half base into altitude, half OA
इंटू बी एन, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. व्हाट इज इट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए, दैट इज अ हाफ ओ ए इंटू बी एन, that is a half OA into BN, that is equal to 2 into area of triangle BOA, that is what, magnitude of A cross B. ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है, that A and B have the magnitude of A cross B, right? so हो गया. that means here you can say that area of triangle AOB, therefore area of triangle AOB, that is equal to half into A cross B. What is it, half into A cross B. So done. Next sum, that is a 7.5. show that A dot B cross C is equal to the magnitude of volume of the parallel pipe formed on the three vector A, vector B and vector C. ओके, सो आपको फाइंड करना है A डॉट B क्रॉस C के लिए, राइट? तो चलो पहले हम ड्रॉ करते हैं. तो जस्ट फोकस हियर ये हमारा है पैरेललोग्राम. ओके, अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ये रहा आपका वेक्टर ए. तो थोड़ी थिक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज़ योर वेक्टर ए. ये रहा आपका वेक्टर बी और ये रहा आपका वेक्टर सी. Okay friend, so just focus here. You can say it is O is a reference point, OA that is equal to vector A, OB is equal to vector B and OC you can say it is a vector C. बराबर है. आपको A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप फॉर्म ऑन द थ्री वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आपको प्रूव करना है. ओके, सो इट इज एज शोन इन अ फिगर. चलो नाउ सी हियर, नाउ हियर वी कैन से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. व्हाट इज द बी क्रॉस सी? दैट मीन्स यू कैन से बी सी साइन थीटा इंटू एन कैप. व्हाट इज द एन कैप? सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, राइट? चलो नाउ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. ओके, बिकॉज ये तीनों दिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है. ओके, दैट मीन्स हियर यू कैन से बी सी साइन 90 इंटू एन कैप, दैट इज यू कैन से इट इज़ अ बी सी इंटू एन कैप. फ्रेंड्स वंस अगेन, ये डायग्राम में आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, बट एग्जैक्टली इट इज़ अ परपेंडिकुलर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बराबर है. दैट इज अ बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू बी सी इंटू एन कैप. नाउ हियर वी कैन टू से दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी. क्या मिला हमें? यू कैन से इट इज़ अ बी सी इंटू एन कैप दैट इज इक्वल टू
ए बी सी इंटू कॉस 0 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम ए बी सी। व्हाट इज द ए बी सी? ए बी सी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। Right, so it is very easy sum. Next sum, that is find the component of x, y, z axis of the angular momentum L of the particle whose position vector. Okay, what is the position vector? So position vector r is equal to xi plus yj plus zk. Okay, and angular momentum you can say p is equal to px I cap plus py j cap plus pz k cap. Okay, show that if the particle moves only in the xy plane, कहाँ पर मूव हो रहा है xy plane, and angular momentum has only z component, that is angular momentum का x component and y component क्या रहेगा 0, angular momentum का x component and y component रहेगा 0. Okay, that means here you can say angular momentum is given by which formula? So you can say L is equal to R vector cross P vector, right? That is equal to, you can say I cap, j cap, k cap. Okay, what is the R? So you can say x, y, z. And what is the P? So you can say px, py, pz, right? अब हम ले लेते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट के कैप. ओके, अब आई वाली कॉलम को हाइड करेंगे, दैट इज अ वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे. अब जे वाली कॉलम को हाइड करेंगे, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स. फ्रेंड्स वंस अगेन कि ये एक्स वाली कॉलम को हाइड कर देना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, अब जे वाली कॉलम को हाइड कर देना है, एक्स पी जेड का मल्टीप्लिकेशन माइनस पी एक्स जेड का मल्टीप्लिकेशन प्लस ब्रैकेट के, मतलब के वाली को हाइड कर देना है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. क्या कहेंगे हम, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ओके, नाउ हियर गिवन दैट x component and y component है 0. What is it? X component and y component 0. That is the px and py 0. Okay. px and py is equal to 0. Okay. चलो फ्रेंड्स, px and py 0, तो ये रहा आपका py is equal to 0. ओके, पहले हम एक काम करते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट ले लेते हैं. ओके, पी जेड 0 है तो ये टर्म 0, z 0. ओके, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट ले लेते हैं इसके. सो हियर दैट इज इक्वल टू Lx into I cap plus Ly into J cap plus Lz into K cap. So what is the Lx? That is the y pz
minus z py. Okay, what is the y component? Ly is equal to x minus x pz minus z px, that is equal to z px minus x pz, and Lz, that is equal to x py minus y px, right? So यहाँ पर it move along xy plane. Okay, so angular momentum has only z component, तो ये x component and y component हो जाएगा 0, so that you have Lz is equal to x py minus y px, right friends? So it is a z component of angular momentum, right friends? So it is very easy. Next sum. ओके, प्रीवियस में ओके एंगुलर मोमेंटम, सॉरी यहाँ पर पी एक्स नहीं होगा, एल पी एक्स एंड एल पी वाई होगा. सो मेक करेक्शन हियर, यू कैन से एल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एल वाई इज इक्वल टू 0, राइट? सो दैट इज एल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एल वाई इज इक्वल टू 0. Two particles, each of mass m and speed v, travel in opposite direction along a parallel line separated by a distance d. Show that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. Okay, मतलब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन. ओके, अब दोनों के बीच में ये इस तरह से है, राइट? सपोज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रहा आपका पहली वेलोसिटी और ये रही आपकी दूसरी, और ये बीच में एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है d. d इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. ओके, जस्ट सी हियर, d इज अ डिस्टेंस. चलो, अब ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं O, ये पॉइंट कंसीडर करते हैं O डैश, और ये पॉइंट कंसीडर करते हैं C. अब यहाँ पर मोमेंटम ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो माइनस एम वी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सो यू कैन से इट इज़ अ प्लस एम वी. ओके, अगर मैं इसको y कहता हूँ तो ये हो जाएगा d माइनस वाई. ओके, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के आपको पता है, राइट? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आई जे के, यू कैन से आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, एंड के क्रॉस आई दैट इज अ जे कैप. ओके, इस तरह से याद रखना है. चलो, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ. एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ. ये ओ पॉइंट के रेफरेंस से हम एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं. ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब एम वी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 0 और माइनस एम वी के साथ ये डिस्टेंस है d. ओके, सो यू कैन से L1, एंगुलर मोमेंटम L1. चलो, what is angular momentum? So angular momentum also you can say L is equal to R cross P. चलो, अब ये पहले एम वी के लिए कंसीडर करते हैं. ओके, सो यू कैन से R होगा आपका 0 क्रॉस एम वी, ये होगा आई कैप, तो ये टर्म हो जाएगी 0 ही. ओके, प्लस अब ये ओ डैश
O से O डैश का डिस्टेंस है d, दैट मीन्स यू कैन से d इंटू जे कैप क्रॉस mv इंटू माइनस आई कैप, दैट इज इक्वल टू यू कैन से mvd, माइनस साइन आगे ले लेते हैं, यू कैन से j क्रॉस i. ओके, नाउ i क्रॉस j दैट इज अ k, सो j क्रॉस i क्या होगा माइनस k, so माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू mvd इंटू के कैप, ये होगा आपका L1. ओके, सिमिलर वे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O डैश, एंगुलर मोमेंटम अबाउट point O dash, that is a L2. okay, that is equal to क्या होगा, just say here O dash के रेफरेंस से, तो ये माइनस mv के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि O dash है आपका रेफरेंस पॉइंट, बट ये O के लिए है mv, तो ये O dash टू O का डिस्टेंस रहेगा d. ओके, दैट इज अ 0 माइनस mv इंटू आई कैप एंड d mv इंटू आई कैप. ओके, d j कैप, राइट. चलो लिखते हैं तो समझ में आएगा. दैट इज इक्वल टू यू कैन से 0 क्रॉस mv इंटू माइनस आई कैप प्लस d माइनस जे कैप क्रॉस mv इंटू आई कैप. ओके, तो ये टर्म हो गई आपकी 0 प्लस mvd माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, दैट इज इक्वल टू mvd इंटू के कैप. ओके, सो ये भी आंसर सेम आया. एंड हियर नेक्स्ट वन, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट C. चलो फिर से सब में देखते हैं. तो C पॉइंट जो है आपका ये रहा. अब ये डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस रहेगा d माइनस y. ओके, y एंड d माइनस y. चलो कैसे करेंगे, जस्ट फोकस हियर. अब ये y होगा माइनस j और d माइनस y होगा प्लस j, राइट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. चलो सी हियर you can say it is a L3. okay, what is the L3? that is a d minus y into j cap cross mv into minus I cap plus y minus j cap cross mv into I cap, that is equal to mvd j cap cross minus I cap minus mvy j cap minus cross minus I cap plus mvy minus j cap cross I cap. okay, so j cross I, that is minus k, and minus minus plus, that is a k. so here you can say it is a mvd into k cap minus mvy into k cap plus mvy into k cap. ये दोनों टर्म हो जाएगी कैंसल, दैट इज इक्वल टू mvd इंटू के कैप. सो हियर आप कोई भी पॉइंट पे कंसीडर करो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3. हमें यही प्रूव करना था. फिर से एक बार क्या प्रूव करना था कि शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज द सेम whatever be the point about which the angular momentum is taken.
मतलब हमने पॉइंट यहाँ पर O कंसीडर किया, O डैश कंसीडर किया या C कंसीडर किया, ये तीन केस में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहा, सेम. सो योर एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम. ओके, सो इट इज 7.7.